Good morning, everyone. This is Business Studies, Chapter 12, Part 2, and today's topic will be consumer rights and responsibilities. My name is Khadija Anwar. We have started this chapter yesterday, and that is on 9th of October, and we have discussed about the consumer protection, its meanings, why is it important, and when is it started, who started it, when is it started, and for what reason it has been started. We have discussed all these things, and basically it has been started for, and it is also running only for consumers, so that the those who are buying the products, any kind of product or any kind of services or any kind of goods, those who are purchasing those things, they may not face any difficulties, and for this reason they have started this Consumer Protection Act 1986, which came into role on 1993, I guess. I don't remember. And one more thing I have to tell you all, which comes in objective type questions, that World Consumer Rights Day is celebrated on 15th of March. Okay, World Consumer Rights Day. It was established on 15th March 1983 to promote consumer rights around the world. So every year on 15th of March, this day is celebrated. That is World Consumer Rights Day. Okay, so we have studied के कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है. नाउ विल स्टडी अबाउट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर. As amended in 1993, there are several important six rights of a consumer for the protection of the consumer. Now, protection किस चीज़ से होता है, ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे चैप्टर 12 के पार्ट 1 में, कि व्हाट आर द थिंग्स जिससे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है. ठीक है, तो सिक्स इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर राइट्स अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एज अमेंडेड इन 1993 are the right to safety, right to choose, right to information, right to be heard, right to seek redressal, and right to consumer education. इसके साथ, ये 6 rights के साथ राइट टू बेसिक नीड्स एंड राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी ऐड हुआ है. ठीक है, सो दीज आर द 2 एडिशनल राइट्स दैट हैव बीन रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दीज आर द अदर 2 राइट्स, बट जो बेसिक है, जो मेन है, वो है द फर्स्ट 6 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, विच विल डिस्कस later in this video only. And तो ऑल टुगेदर 8 कंज्यूमर राइट्स हो जाता है. बट और ये तुम्हारे बुक में भी दिया है इन पेज नंबर 442 एंड 443. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना 2 और राइट निकाला, जो कि था राइट टू बेसिक नीड्स एंड राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, जो कि कंज्यूमर के राइट्स है. ठीक है, सो राइट टू बेसिक नीड्स एंड राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, ये हम लोग जब 6th राइट पढ़ेंगे उसके बाद आई विल मेक यू ऑल अंडरस्टैंड. तो राइट टू सेफ्टी जो है वो कंज्यूमर्स हैव द राइट्स टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स. ठीक है, एनी डिफेक्टिव गुड्स जो कि कुछ भी ख़राब कर सकता है, तुम्हारे घर को बर्बाद कर सकता है. ठीक है, तो ये सब जो होता है, लाइक जो सिलेंडर गैस होता है उसमें डिफेक्ट होना, या जो प्रेशर कुकर होता है उसमें डिफेक्ट होना, या जो वायर्स होता है वो भी एक गुड्स होता है, उसमें डिफेक्ट होना. तो ये सब गुड्स में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए. एंड इफ़ यू फाइंड एनी डिफेक्ट इन these types of goods which is dangerous, then you have the right to be safe and you can complain. Okay, so this is right to safety. Now the next one is right to information. So right to information means you
have the right to be rightly informed about the product you are purchasing. ठीक है, ये तुम्हारा right है, ये तुम्हारा हक है कि जो जो गुड्स जो तुम परचेज कर रहे हो उसके बारे तुम जानो, ठीक है, क्योंकि यू आर पेइंग फॉर दैट गुड। ओके, तो तुमको पता होना चाहिए कि उसका डेट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो एक्सपायर्ड तो नहीं है, उसका पैकेजिंग अच्छा है कि नहीं, ये सब चीज़ तुमको तुम्हारा हक है कि यू शुड नो दीज थिंग्स, यू शुड गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट दीज थिंग्स। इसीलिए जो लेबल होता है, जो लेबलिंग या पैकेजिंग होता है, उसमें ऑल टाइप्स ऑफ नेसेसरी थिंग्स आर मेंशन्ड फॉर द कंज्यूमर, ठीक है, फॉर मेकिंग द कंज्यूमर्स अवेयर अबाउट देम। ओके, नाउ द थर्ड वन इज right to choose. Okay, so the consumer has the freedom to choose from a variety of products at competitive prices. This implies that the marketers should offer a wide variety of products in terms of quality, brand, prices, size, etc., and allow the consumer to make a choice from among these. ठीक है, सो द कंज्यूमर्स, इन लोग के हमारे पास ये भी राइट है, ये हक है कि हम लोग हर प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में एक ही तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। अलग ब्रांड का सेम प्रोडक्ट है, अलग प्राइस का सेम प्रोडक्ट है, अलग डिज़ाइन का है, अलग क्वालिटी का है, किसी में ज़्यादा क्वांटिटी है, किसी में कम क्वांटिटी। तो ये सब भी राइट दिया गया, इसीलिए इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया गया हर प्रोडक्ट को, और इसीलिए देयर आर सेवरल ब्रांड्स जो एक ही तरह का प्रोडक्ट, एक ही तरह का गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, फॉर अस टू फॉर अस सो दैट वी कैन चूज the product. ठीक है, so this is right to choose. Now, right to be heard, the consumer has the right to file a complaint and to be heard in case of dissatisfaction with a good or services. It is because of this reason that many enlightened business firms have set up their own consumer service and grievances cells. Okay, now right to be heard means there are many, almost all the organizations जो big firm है, जो large level industries है, या जो large level organizations हैं, they all have set up their own consumer protection cell. ठीक है, like AGO example, तुम AGO जो brand है या AGO जो app है, और मिंत्रा है या फ्लिपकार्ट है या एयरटेल हो गया, और एनी काइंड ऑफ गुड्स जो तुम खरीद रहे हो किसी से भी, लाइक नेस्ले का कुछ ले रहे हो, या एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो तुम खरीद रहे हो, अगर उसमें तुमको ज़रा सा भी लग रहा है कि ये ख़राब है या ये नहीं होना चाहिए, so what you have to do, you have to dial that toll free number so that they can hear your grievances, they can hear your difficulties, and they can solve your problem. Now, right to seek redressal, the consumer has a right to get relief in case of the product or service falls short of his expectation. Most of the time कुछ और देख के हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, बट वो खराब हो जाता है। एट दैट टाइम दिस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ रिलीफ टू द कंज्यूमर्स, इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ, ठीक है, तो ऐसा अगर होता है तो what they can do, they can रिप्लेस योर प्रोडक्ट, या एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, या जो कुछ भी खराब हुआ है उसके लिए तुमको पे कर दिया जाएगा। नाउ, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, consumer has a right to acquire knowledge and to be well informed about the consumer throughout life. He should be aware of the rights and reliefs available to him in case of a product or services falling short of his expectation. Okay, so हर एक कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि उसका क्या क्या राइट्स है, ठीक है, so that they can educate themselves. Now, as I said about the right to basic needs and healthy environment, the United Nations organization has asked in member countries to grant its right to the people, and इस right के according, मतलब right to basic need जो है उसके according हर एक सिटीजन को ये राइट दिया गया कि वो लोग अपना जो बेसिक नीड होता है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब का हक है, और ये आप लोग गवर्नमेंट से ले सकते हैं, और हेल्दी एनवायरनमेंट भी। सो ये भी राइट है कंज्यूमर का कि वो लोग को एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिले। कहीं पे भी अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे आसपास कुछ ख़राब हो रहा है या गलत हो रहा है, तो यू कैन ईजिली गो एंड कंप्लेन टू द गवर्नमेंट, कंप्लेन टू द फोरम्स जहाँ पे तुम्हारा ये सब कंप्लेन सुना जाएगा, एंड दे विल
instantly look after that so that you can live peacefully. Okay, now we will be studying about the consumer responsibilities. तो कंज्यूमर राइट्स के बारे में हम लोग पढ़ दिए. बाय देमसेल्व्स कैन नॉट बी इफेक्टिव इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कैन इन इफेक्ट बी अचीव्ड ओनली व्हेन द कंज्यूमर्स अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो जो हम लोग पढ़े हैं कि कंज्यूमर हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, तो उन लोग राइट टू बी एजुकेटेड, तो उन लोग को ये भी बताया जाएगा कि आपका खुद का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, कंज्यूमर का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. नंबर 1, बी अवेयर अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट, ताकि तुम सही चूज कर सको. बाई ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स. ओके, हर एक स्टैंडर्डाइज गुड का एक लेबल होता है जो कि आगे तुम लोग देखोगे, वो देख के लेना चाहिए गुड्स को. लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट्स. ओके, ऐसा हो सकता है कि तुम गुड्स ले लियो, लेकिन उसका कोई गारंटी वारंटी इसीलिए देता है कि हो सकता है ख़राब निकले. तो tackle that problem. Now read labels carefully so as to have information about the prices. कभी भी goods लो तो price देखो, expiry देखो और उसके बाद ही पे करो. Assert yourself to ensure that you get a fair deal. ठीक है, तो ध्यान रखो कि तुम कौन सा गुड्स कितने में ले रहे हो और मार्केट के बारे में पूरा नॉलेज रखो, ताकि ऐसा ना हो कि डील करने टाइम तुमको कोई लॉस हो. नाउ बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स. चूज ओनली फ्रॉम लीगल गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, ऐसा नहीं हो कि कम में सामान देख रहे हो तो वो ले लो. हमेशा लीगल गुड्स एंड सर्विसेज में ही डील करो. आस्क फॉर अ कैश मेमो. ऑलवेज आस्क फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स. मतलब चाहे तुम एक छोटा सा दुकान से भी कोई सामान ले रहे हो तो ऑलवेज आस्क फॉर अ स्लिप. ठीक है, एक कैश मेमो जिसमें तुम्हारे पास एक विटनेस है कि तुम यहाँ से सामान लिए हो. फाइल अ कंप्लेन इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम इन केस ऑफ अ शॉर्ट कमिंग इन क्वालिटी ऑफ गुड्स. ठीक है, then form consumer societies which would play an active part in educating consumers. Okay, now पहला कि एक ऐसे फोरम में ही कंप्लेन करो जो तुम्हारा बात सुन रहा है. एंड द 9th वन इज फॉर्म अ सोसाइटी जिसमें तुम कंज्यूमर्स मिल के ही, हम कंज्यूमर्स मिल के ही एक सोसाइटी बना सकते हैं जिसमें हर एक के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके. रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉल्यूशन. ठीक है, नाउ वी कंज्यूमर्स आर द ओनली वन हु कैन minimize the pollution. Okay, now a consumer's awareness about his rights and responsibilities is just one of the way in which the objective of consumer protection can be achieved. There are other ways in which this objectives may be achieved. तो rights and responsibilities हर consumer को पता होना चाहिए, because their betterment is in their hand and they only have to take care of themselves. So every customer, every consumer must educate themselves about the rights and the responsibilities of a consumer. So we have done with today's topic. इसके बाद जो picture आएगा उसमें you will get the labels of द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के क्या क्या लेबल मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, जिससे पता चलता है कि तुम एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट ही, स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट ही परचेज कर रहे हो. ठीक है, वन मोर थिंग नोट डाउन कि जो लास्ट का 2 राइट्स के बारे में हम बताए हैं, दैट इज़ राइट टू बेसिक नीड्स एंड राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से था, जो कि तुमको 442 पेज नंबर और 443 पेज नंबर में एस.के. सिंह के बिजनेस स्टडीज़ बुक में मिलेगा. तो बट इफ़ यू विल राइट द 6 rights which we have discussed, that is also enough. ठीक है, as I said, these are the quality of different products. Okay, marks, these are the marks, these are the labels, these are the marks that is indicated in a product to mention that you are buying a quality product, a good quality product. ठीक है, पहला है मार्क ऑफ ब्यूरो एंड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दूसरा है फूड प्रोसेस ऑर्डर, तीसरा है एगमार्क, देन वी हैव BIS हॉलमार्क जो कि गोल्ड में होता है, गोल्ड इक्विपमेंट में होता है, एंड देन इको मार्क. ठीक है, इको मतलब इको फ्रेंडली चीज़ है. ठीक है, so these are the 5 marks indicating the quality of different products. That's all for today. Today we have done the consumer rights and responsibilities. So the questions will be discussed
in the WhatsApp group as always. That's all for today. जैसे जैसे क्वेश्चंस हम दे रहे हैं उसको सॉल्व करते जाओ, एंड इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी वीडियो प्लीज़ आस्क मी with the help of through WhatsApp group for which I have created this group. So if you people have any query, let me know. You can also write it on the comments below. ठीक है? And if you are still not added in that group, अपना number दो so that any admin of that group can add you. Okay? That's all for today. Stay safe, stay at home. Thank you.